Welcome to Boral News. Online classes deprived due to poor internet connectivity and frequent power cut in Harangazao region. At a time when all classes are going online in the entire nation due to COVID pandemic, students and teachers in Harangazao region could not conduct online classes due to poor internet connectivity and frequent power failure in the region. The village are facing slow mobile internet connection since past several months due to an unknown reason. The locals said that they had appealed to the concerning authorities several times but are yet to receive any positive response. Locals also say that their monthly recharge go in vain due to poor quality of mobile network. I will say that perhaps this is the negligence of authority concerned and the department concerned, that for so long the people of Harangazao in particular, we are facing numerous problems, numbers of problems every day we are facing because of this lack of proper electricity supply and slow network connection. So several times individually we also made a complaint, and we also made an appeal to the department concerned regarding the poor connectivity as well as the irregular supply of electricity supply. But the thing is that till now all those appeals that were being made, it was in vain. And I remember that last month, that is on 6th or 7th of June, the students, July, the students as well as the teaching fraternity and the public as a whole, we also made an appeal through the media platform that we have lots of grievances regarding our electricity supply as well as the slow net connectivity in this area. But not even a month has passed. It is witnessed that every day we hardly have 4 to 6 hours of electricity power supply. Not to talk much about net connectivity. It is always the same conditions. And you see we have Jio connectivity, BSNL, as well as Vodafone. And even we also have this Airtel connectivity. But the thing is that you see not all these have a proper connection. They are not quite fast enough, and we also know that in this pandemic situation, not only because of this pandemic situation, but you see, just as we human, we need shelter, we need food, we need clothing. Likewise, this internet connectivity or electricity power supply, this has become a necessity for us, and it is an indispensable part in our life as well. And particularly we have seen that the students and the teachers in particular, we are facing lots of problems. Let me just mention some examples that we have been facing so far. The thing is that sometimes you see there is a time frame for submitting the assignment or for attending the online regular classes. Sometimes we even have to appear the examination through online. And in such situation we see that because of the poor connectivity, we cannot submit it on time. As such, the students of this Harangazao area, we are so much lagging behind. We cannot cope up with the rest of the students. We cannot cope up with the students of those who are residing in town. So, since it is in the southernmost part of Dima Hasao, or it is the cornermost part of Dima Hasao, it doesn't mean that the people living there can be neglected. You cannot disregard the feelings, the consent of the people living there. So, it is a great concern, and today we cannot remain a mute spectator. We cannot become a silent spectator. We cannot just watch and observe what is going on. We have to raise our voice. So in that sense, today again we are appealing to the respective authority concerned or whomever it may concern. Please kindly look into the matter, and this is our everyday problem. And you see, if you are not well connected in terms of communications, internet connectivity in today's 21st century, you cannot cope up with everybody. You will always be lagging behind. So if we neglect this area in terms of this connectivity, then perhaps there is no hope for the people.
So it is time for us to raise our voice in terms of these grievances that we have so far. The people of Harangazao have been suffering from frequent power failure for past several years due to negligence of the authority concerned and have been allegedly indifferent to people's votes. Whenever there is heavy rain in the region, the power supply completely cut off for more than 6 days. Earlier, there was an office with sufficient staff, but as time passed, the number of staff have decreased to only one who is working overall, and the infrastructure have reduced, though it sees a huge increase of consumers. The people have been demanding to reinstall a subdivision office with sufficient staffs, as the North Cachar Hills Autonomous Council had already allotted a plot of land to APDCL. का ये प्रॉब्लम तो आगे से है। अभी तो जैसे उस पार में, ब्रिज का उस पार में करना है, मार्केट में नहीं है। दिन भर ऐसा रहता है, रात में भी चला जाता है। ब्रिज का उस पार में रहता है, इस पार में नहीं रहता है। वो बोलने से बोलता है वो बस्ती का लाइन के साथ एक साथ ज्वाइन किया है, वो उधर का चला जाना से इधर भी चला जाता है। ये प्रॉब्लम जो स्टाफ है 6 महीना हो गया। 6 महीने से उसके ऊपर हो गया। आप लोग को इसके लिए कंप्लेन किया ना नहीं किया है? क्या बोलते हैं वो लोग? बोलता है ठीक हो जाएगा, हम लोग कर देगा बोलता है, ऐसे बोलता है। लेकिन अभी भी ऐसे जनरेटर उपाय नहीं है। और इधर का नहीं देखिए, आज भी सुबह से करंट नहीं है। कल रात को 11 बजे गया था, अभी तक नहीं। करंट का बिल तो हर महीना आता है। Considering the plight of the people of Harangazao, the executive member, North Cachar Hills Autonomous Council, Amendu Hojai, who is also the local MSC, has initiated to trim bushes where power line passes through. He also allotted a plot of land to APDCL at Harangazao for installation of bigger transformer and subdivision office with accommodation of staffs, so that there is no power failure in the region. मेन प्रॉब्लम हो गया हरंगाजाव में। तो करंट का प्रॉब्लम पहले से तो बेहतर हुआ, क्योंकि हमारा जो EM साहब है अमेंदु होजाई जी ने वो अपना फंडिंग करके वो जंगल कटिंग कराया, इसीलिए थोड़ा पहले से तो बहुत बेहतर हुआ। लेकिन हमारा बाज़ार में क्या प्रॉब्लम है, ये कमर्शियल एरिया है, हमारा सब दुकानदार सब कमर्शियल हम लोग कनेक्शन है, हम लोग बिलिंग ज़्यादा देते हैं। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ गया। यहाँ पे जो फीडर 2 फीडर है बोला, हम लोग उस दिन SDO साहब आया तो हम लोग पूछा है, तो मार्केट फीडर को साथ में कपूरचुरा एक विलेज को साथ में अटैच कर दिया। तो मार्केट फीडर कपूरचुरा बस्ती के साथ अटैच होने से प्रॉब्लम ये आ गया, कपूरचुरा बस्ती में अगर आपको लाइन में कुछ गिर गया, अभी जो ये हिल एरिया है, बांस बम्बू गिर गया लाइन में, तो मार्केट चला जाता है। तो वो मार्केट का लाइन देने में उन लोग को 2 घंटा लग जाता है। तो ये दिक्कत हम लोग को आ रहा है अभी। तो ये ठीक होगा बोल के बोला है, जो नया से सब स्टेशन बनाएगा, तो वो सब स्टेशन कब बनेगा? हमारा टाउन कमेटी तो ऑलरेडी इसके लिए ज़मीन दे दिया, लेकिन ACB का APDCL का तरफ से कुछ स्टेप हम लोग नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीन तो मांगा है टाउन कमेटी, हम लोग EM साहब सब मिलकर ज़मीन भी दे दिया। जो नया सब स्टेशन आप लोग बनाइए, तो लोग नया टाउन फीडर 3 फीडर बनाएगा बोला, तो कहाँ उनको कुछ स्टेप ही नहीं है। ज़मीन दे दिया, लोग कुछ स्टेप नहीं ले रहा है, कब बनाएगा? APDCL का स्टाफ को लेकर क्या बोलेंगे? APDCL स्टाफ हरंगाजाव में नहीं है, एक ही स्टाफ है, वही लाइनमैन है, वही इंजीनियर है, तो बाकी सब आपको कैजुअल लेबर है। वो कैजुअल लेबर के पहले हमारा यहाँ में 33 के भी सब स्टेशन है, तो इसमें यही होने का ज़रूरत है। तो हम लोग पैसा दे रहा है, पब्लिक लोकल पब्लिक करंट के लिए रुपया देता है, लेकिन कुछ हम लोग बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप लोग का बिल आपको कैसे होता है? बिल आता है? बिल आता है महीना बिल आता है, बिल भी देता है। बिल नहीं देने से तो फाइन हो जाता है। 3 महीना बाद में वो लोग लाइन काट देता है, इधर लाइन ही नहीं है। तो कैसे? ये भी बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि हमारा खुद बच्चा है और हमारा बीच में बोलमूल का विलेजर्स, तो हमारा बाजार के साथ में लोअर खारतूम कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, लोग भी प्रोटेस्ट किया। हम लोग भी वो वही बात बोलना चाहता है, क्योंकि नेटवर्क का भी एक प्रॉब्लम है। छोटे कारण नहीं होने का वजह से नेटवर्क चला जाता है, कि डीजल वीजल लाने का टाइम लगता है, तो टावर नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, उसमें दिक्कत आ जाता है, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं होता, तो ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आ जाता है। लड़का लोग को बोलिए, बच्चा लोग को बोलिए, स्टूडेंट्स का इन जनरल, साथ में हमारा बिजनेसमैन का भी ऑनलाइन क्लास करने के लिए
ऑनलाइन में कुछ करने के लिए दिक्कत आ जाता है। तो मेन ये प्रॉब्लम अभी हारंगजाव में है। हमारा अपील यही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी जो है हमारा सभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पब्लिक से वोट दिया है, वो लोग बहुत कुछ कर रहा है। और हम लोग हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है हारंगजाव का अमेंदु होजाई जी का थ्रू से उन्होंने बहुत कुछ किया है हारंगजाव का कारण के बारे में। अपना से वो जंगल काटिंग कराया आदमी लगा के, तो उसके बाद में थोड़ा तो बेहतर हुआ। अभी टाउन कमेटी लोग बात किया, उन लोगों ने बात किया ऊपर में, बात करने के बाद APDCL से एक बड़ा सा सब स्टेशन बनाएगा बोला नया से, और उन लोग ज़मीन चाहिए बोला, ज़मीन भी दे दिया। अभी उन लोगों का APDCL का जो अभी कंपनी हो गया है उसको मतलब स्टेप को हम लोग नहीं देख रहे हैं। वो लोग बोल रहा है जो हो जाएगा लेकिन कब तक होगा, ये हमारा अपील है हमारा नया चीफ मिनिस्टर को। जो ये हिल एरिया छोटा सा जगह है, छोटा नया टाउन हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और कारण के बारे में कुछ मतलब डेवलपमेंट देखना चाहिए थोड़ा जल्दी। Meanwhile, the only ATM, Public National Bank at Harangazao, also could not serve its customer as the ATM never opens after 4 to 5 of its establishment. Locals say that they have to queue for an hour to withdraw cash from the bank. However, some merchant runs private CSP system where customers can withdraw cash by paying a small sum. करेंट और नेटवर्क के बारे में हम लोग स्टूडेंट लेवल से 7 जुलाई को हम लोग एक बार इंटरव्यू तो दे दिया था, प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन देखिए अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। जो टावर वाला जो कंपनी को हम लोग पूछा था, उन लोग से जो रेस्पॉन्स मिला था, उन लोग बोला है कंज्यूमर ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा दिक्कत आया है बोला। तो कंज्यूमर ज़्यादा हो गया है तो रेंज बढ़ा देना चाहिए था, जो टावर का जो रेंज है, तो जो पावर है उसको बढ़ा देना था। और देखिए यहाँ नेटवर्क हमारा जो ये बोलमोल का टावर में 3 नेटवर्क है, वोडाफोन है, एयरटेल है और जियो है। इसमें देखिए जियो वाला और वोडाफोन वाला और एयरटेल वाला बेकार है। जियो वाला इस थोड़ा नेटवर्क फास्ट है, इसलिए सब कोई नेटवर्क में ढूंढने लगा, तो ये जो दूसरा है वो तो बेकार रह जाएगा, उसको तो ज्यादा कंज्यूमर हो गया मतलब, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको जो अथॉरिटी है उसको में हम मतलब जानना चाहता है कि तीनों हिस्से तीनों बराबर कीजिए, जो नेटवर्क का जो रेंज है वो बराबर कीजिए, तब हम लोग का जो समस्या है वो फिलहाल एडजस्टमेंट हो जाएगा, 1 नंबर। और 2 नंबर में इलेक्ट्रिक के बारे में हम जो कहना चाहता है, हमारा हरंगजाव में जो स्टाफ लाइनमैन जो है सिर्फ 1 है। तो हमारा प्रॉपर हरंगजाव में लगभग गांव होगा 30 विलेज, नहीं तो 28 ऐसा समथिंग होगा, तो एक आदमी में संभालना मुश्किल है। तो हम यहाँ हरंगजाव का जो EM सर जो अमेंदु होजाई जी को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। उसका तरफ से जो मास्टर रोल से कोई बंदा लोग को 6-7 आदमी को हाजिरा दे को वो खुद लगाया है, इसलिए आज तक हम लोग करंट कोई शुरू मिलने लगा है, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत आ जाता था। इसलिए मैं उसको भी मीडिया थ्रू से उसको भी हम थैंक्स देना चाहता है। और मैं APDCL या असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ स्टाफ बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 15 से 20 स्टाफ यहाँ रखना चाहिए। और देखिए जो APDCL वाला है हमारा गांव में, देखिए फरवरी 2021 को हम लोग एक एप्लीकेशन डाला था। हमारा गांव का 20-20 में हम लोग का जो गांव का जो 20-20 में वो जो इलेक्ट्रिक मेन लाइन जो है रास्ता के ऊपर में लोग टाना था, तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन डाला था डाइवर्ट करने के लिए। हम लोग जमीन दे देगा, जंगल दे मतलब जगह दे देगा, हम लोग उन लोग को दिखाई देगा, गांव का 20-20 आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग रास्ता चलने वाला के लिए बहुत ज्यादा रिस्क दिक्कत होता है बोल के उनको हम लोग एप्लीकेशन डाला, लेकिन आज तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसको भी मैं मीडिया थ्रू से मैं उसको सवाल करना चाहता हूँ SDO सर को, किस कारण से अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया। हमारा जो एप्लीकेशन है कंज्यूमर कमेटी थ्रू से जो एप्लीकेशन दिया था, गाँवरा थ्रू से जो एप्लीकेशन डाला था, आज तक कुछ कदम नहीं उठाया, कुछ भी हम लोग को रिप्लाई नहीं मिला। क्या वजह है, क्या कारण है, उसको भी मैं जानना चाहता हूँ मीडिया थ्रू से। जी जरूर जान जा सकता है, यानी बहुत बार हो चुका है, जब बारिश का टाइम में, बिजली का टाइम में, वो बारिश का टाइम में तार भी टूट जाता है, रास्ता में बीच रास्ता में पड़ जाता है, उसमें आग भी लग जाता है कभी कभी। उस दिन 2-3 दिन पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, नहीं तो आप लोग अगर नहीं माना तो वो जो इंचार्ज यहाँ का जो लाइनमैन जो मिंटू है उसके भी आप लोग पूछ लीजिए, हम लोग यहाँ से फोन करके उसको लाइन काटने के लिए बोला था। ऐसा इंसिडेंट बहुत बार हुआ है,
अभी भी यहाँ पूरा पब्लिक गांव के लिए पूरा डेंजर है। पूरा क्या बोलेगा, जो घास हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करता है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। और 3 नंबर 1 मैं कहना चाहता हूँ, हरंगजाव का जो बैंक है, बैंक के बारे में भी हम लोग बहुत बार खिलाफ उठा दिया था सरकार से। क्या जाने क्या खिलाफ उठाया, क्या कदम उठाया, हम तो मालूम नहीं है। स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, जो स्टेट बैंक जो है, देखिए हम लोग स्टेट बैंक का कंज्यूमर बहुत है, लेकिन स्टेट बैंक हरंगजाव में नहीं है, हाफलोंग में है। इसलिए मैं सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हरंगजाव में एक सब स्टेशन या क्या बोलता स्टेट बैंक का कुछ यहाँ सब ब्रांच बनाना चाहिए। यहाँ एक कस्टमर केयर पॉइंट रखा था, लेकिन उसमें हम लोग का काम नहीं चलता, क्योंकि वहाँ बहुत फीस लेता है। हम लोग को 5% देना पड़ता है। 10,000 उठाएगा तो 50 रुपये आपको फाइन देना पड़ता है। हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। हाफलोंग में हम लोग स्टेट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाता तो वो लोग बोलता हरंगजाव में जाओ। हरंगजाव में तो कुछ ब्रांच ही नहीं है, हम लोग क्या करेगा। लेकिन हम लोग को तो चाहिए SBI का। यहाँ PNB और जो असम ग्रामीण विकास बैंक जो है, इसमें हम लोग का सफिशियंट नहीं होता है। हम लोग का पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है और टाउन भी हो गया है। सिर्फ नाम का टाउन होने से नहीं होगा, जो सामान, जो डिपार्टमेंट या जो भी हो, सब कुछ टाउन का जो फैसिलिटी है वो पूरा फैसिलिटी होना चाहिए। हमारा तब से यही उम्मीद है। Reporting by Subrode Boral, News from Harangazao.